हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल द बी टेक फैक्ट्री। सो गाइज, आज आप लोग के लिए एक अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आ चुका हूँ। एंड अगर आप लोग भी टायर 3 कॉलेज से हो एंड एक बड़ा पैकेज लेना चाहते हो, 10 एलपी, 12 एलपी, 13 एलपी, 15 एलपी, तो आज की ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड इस पॉडकास्ट में आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आज आपको एक लास्ट मिनट टिप्स मिल होगी, जो आपको एक बहुत अच्छा पैकेज ग्रैब करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सौरव, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, hi. My name is Saurabh Mazumdar. I am from Kolkata, West Bengal. So I passed out my BTech in the year 2019 from Tier 3 college in Kolkata. So from college, actually, I got placed into like business development domain. Uh, so I basically worked in sales for like three and a half years. And after that, I decided that I don't want to be in that field anymore. I wanted to switch to the tech industry. I had a little bit of interest in coding during my plus two or college days, but in college also I was in ECE. So that's why I did not get a lot of exposure to the coding thing. So in the year 2023, after working for 3-4 years, when I decided to switch to the tech industry, I thought of joining some institute. At that time, I was like researching in the internet. I researched about a lot of institutes. After that, I decided to join AccioJob. So in the year 2023, I joined AccioJob, and after around 1 year of studying and all these things, I got placed in a company named Smash. So right now, it's been around 5 months, 66. It's been around more than 6 months that I'm working in Smash in Bangalore. So that's all. Oh, nice, nice, Saurav, nice journey. Okay, Saurav, so can you tell me how do you prepare yourself for such a big company? Yes. When I decided to switch to tech or as a software engineer, at that time I researched about a lot of institutions, and finally I joined an institution named AccioJob in the 2023. So in AccioJob, the course was actually a full stack development course, that is basics plus backend plus front end, and after that, once you are placement ready, they will give you placement as well. Okay, placements hello. Yes, that was a job guaranteed program basically. So so every month was a module there, and you have to clear that module. You have to clear the exam. So every month you have to clear the module exam, as well as there was a mock interview. Okay, so both the things you have to clear, and then only you can go to the next module. So the first 3 months was basic computing. Like I did not have any knowledge about coding. As I told you, I was working for the 4 years. I did not even touch a book or pen for 4 years after college. Again, I started studying after 4 years. So it was a like new journey for me. The first 3 months was like basic programming using Java, and along with that there was aptitude also. Aptitude, right? So yes, aptitude also. Okay, okay. So there are things like if you are joining in a kind of service based company, in that case only the aptitude is required as much as I have the knowledge. Yeah, When you are joining for a product based company as a proper backend developer or a front end developer, the aptitude is not that much required. yeah, yeah. Still, yes, Accuser prepares for all the things. So for the first 3 months, I learned those basic coding and then the aptitude part also. So after 3 months, there was an choice for you that which one you want to do fast. You are doing both the things, back end and front end, but which one you want to do first, the back end part or the front end part. So I was always more interested towards the back end part. And so there was a score also, like if you can score good, then only you can go for the backend first. So I chose the backend part. So the backend was the most important part of that journey. So around the 3 to 4 modules were there based on DSA. The difficulty level was increasing. Like they start with basic arrays and all, then they go to other data structures like trees and binary search trees, and after that there comes the graphs. Here comes the like dynamic programming. All those things are there. So those 3-4 months were the most important part of me, and I was studying along with my job. So I was working plus I was studying at that time. After returning from the office in the evening time, I studied, and in the weekends I studied. The modules were for 1 month, but I could not complete in 1 month. That's why I repeated the modules. That is one very good part about AccuJob, that they allow you to repeat the modules. And if you cannot complete it in 1 month, you can complete it in 2 months or 3 months also. So yeah, I never rushed to like. I found many students, they are hurrying to just clear the exam by cheating or something. They just going for the placement.
So I never did that thing. I waited till I was satisfied with my learning. हाँ, और उनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन सब चीज़ों से होगा भी नहीं कुछ। अगर आपने एक कंपनी क्रैक कर ली या फिर आप एक कंपनी का एक राउंड क्रैक कर लिया, देन आप इंटरव्यू में पहुँचोगे तो वहाँ पे भी तो आपकी नॉलेज काम आएगी। और फिर आपने एक कंपनी या एग्जैक्टली, मुझे ये चीज़ पता था कि मैं यहाँ पे पैसा दे के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली बस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में किया है, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन अब जाके इतना मतलब अभी लाइफ का अल्टीमेट लास्ट पॉइंट में आके वो करके कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद के लर्निंग सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक आप कैसे ही बैठोगे इस व्यू में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपकी एक बार प्लेसमेंट्स होगी, देन फिर आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जब किसी भी आप आईटी इंडस्ट्री को जॉइन करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की आती है कि जब आप वहाँ पे कोई काम करोगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। और आजकल स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आदत खराब जो हो रही है स्पून फीडिंग, कि उनको ये है कि भाई इनको खाना लेके ला के दे दो, रात से खिला दो। तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और वे सस्टेन नहीं कर पाएँगे। देन होगा क्या? फिर जॉब से निकाले जाएगा, आपको पता है ये चीज़। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दैट इज द थिंग। तो मैंने वो 3 महीने की पढ़ाई अराउंड 6-7 महीने में किया। बहुत स्लोली किया मैंने, बहुत स्लोली किया। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे तब तक मैं करता गया। उनके वीडियो लेक्चर्स था, वो वीडियो लेक्चर्स से मैं हर एक दिन का पढ़ाई करता था। और वीडियो लेक्चर्स के बाद आते थे उनके असाइनमेंट्स, कोडिंग असाइनमेंट्स उनके प्लेटफॉर्म में। उनके खुद के होते होंगे पर्टिकुलर असाइनमेंट्स लाइक। हर एक वीडियो लेक्चर के जो पढ़ाया गया है उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्लास में उन्होंने करा दिया। उसी पैटर्न के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में थे। तो वो क्वेश्चंस आप ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लो। तब मैं खुद से ट्राई करता था। जब नहीं होता था तब मैं यूट्यूब वगैरह ओपन सोर्स में जाके वीडियोस देख के हेल्प लेता था। या फिर एक्चुअली जो अपने भी 1:1 डाउट सेशन है, मेंटल क्लियरिंग डाउट सेशन, क्लियरिंग सेशन है, वो क्लियरिंग सेशंस को लेके मैं सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करता हूँ। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज को कंप्लीट करो, उसके बाद ही उसका नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाओ। टॉपिक केस का जो है वो लीड है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो नेक्स्ट टॉपिक में कोई नहीं। 100% एग्री या। एग्जैक्टली। और तो उनके एक्टिविज्म के असाइनमेंट्स करने के बाद भी मैं लीड कोड या वीक्स फॉर वीक्स में उसी टॉपिक के ऊपर बेस करके इजी पहले पहले मैं इजी क्वेश्चंस करता था। और उसके बाद जाके मैंने मीडियम क्वेश्चंस ट्राई करा। तो मीडियम क्वेश्चंस ऑब्वियसली मतलब एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, होते नहीं थे शुरुआत में, बिल्कुल भी सॉल्व होते नहीं थे। मैं हेल्प लेता था वीडियोस से, डाउट क्लियर सेशन से। करते एक टाइम आया जब मैं सॉल्व, अभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा मैंने इंप्रूवमेंट देखा। देन फिर आप इस मतलब एक प्रोसेस में कैसे मतलब आपका स्टार्ट हुआ कि आपने ये तो प्रिपरेशन कर ली। अब जो मेन चीज़ आती है कि टायर 3 कॉलेजेस में जो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि कंपनीज़ बहुत कम आती है। जो कंपनीज़ आती है, वो आती है 3.5 एलपीए की, 4 एलपीए की। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स अपना पैकेज भी अपग्रेड करना चाहते हैं, बट मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। एंड टायर 3 के लिए भी एक हो जाता है, बैच हो जाता है कि टायर 3 से हो आप। तो आपको बहुत फिर आपको मतलब बैक की जॉब नहीं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की थी, आप बहुत सारी कंपनीज़ में बैठे थे, तो वो वाला थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यस। सो जब मैं जॉइन किया था उसी टाइम पे ये बात क्लियर हो गया था कि जॉब की तरफ से मेरे कि यहाँ पे जो कंपनीज आएंगे एक्चुअली जॉब में, दे डू नॉट केयर अबाउट विच फ्रॉम विच कॉलेज यू आर, हाउ मच परसेंटेज यू स्कोर्ड इन 12, हाउ मच परसेंटेज यू स्कोर्ड इन सीजीपी। और एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया रहता है मे बी कि 12 में आपका 50% होना चाहिए, या फिर आप एटलीस्ट बीटेक पास आउट हो। बीटेक का भी कोई यार एक्चुअली जॉब है तो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स आके आज बहुत बड़े कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो दिस इज अ शिफ्ट इन इंडिया दैट हैज हैपेंड टुडे। आज से कुछ साल पहले भी ये चीज था कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी आईआईटी या फिर एनआईटी के से ही रिक्रूट होते हैं बड़े कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इवन जिस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी जो सीनियर लोग हैं सब लोग आईआईटी एनआईटी से भी है। तो ये अभी रिसेंटली ये ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है कि कंपनीज आर मोर लाइक कंसर्न अबाउट आपका कोडिंग नॉलेज, आपको कितना कच्ची कोडिंग आता है, रादर देन आप किस कॉलेज से हो और आप किस आपका क्या स्कोर्स है। सो आपने जैसे बताया कि टायर 3 कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज कम है, और अगर होते भी हैं तो वो अराउंड 3 to 3.5 तक ही होते हैं। तो दैट द रीजन फॉर दैट इज दैट कि उनके प्लेसमेंट्स जो होते हैं दैट इज मोस्टली टू द सर्विस बेस्ड कंपनीज। ओके। बच्चों को उतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। दैट इज द रीजन कि वो पैकेजेस बहुत कम है। आज एक्यो जॉब में जितने भी कंपनीज आते हैं, ऑल आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड द रोल दैट वी गेट आर मोस्टली एज अ डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप कंपनी में जाके कोडिंग करने वाले हो प्रॉपर। दैट इज व्हाई इनके एवरेज पैकेज भी अराउंड 7 to 8 एलपीए है। एज अ फ्रेशर यू आर गेटिंग 7 to 8 एलपीए। Doesn't matter from which domain you are. You can come from the arts background, you can come from mechanical engineering, civil engineering, any kind of background you can come from. If you can
complete the course properly, if you can study, if you can be skilled in the coding part, the coding problems that they will give in the interview, if you can solve them and explain them properly, so you will definitely get a good package here. मतलब आपको प्रिपरेशन करनी है, पैकेज और जॉब्स लगवाना एक की जॉब का काम है, ठीक है? सो कैन यू टेल मी अ रोड मैप व्हिच वुड बी हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स और आवर ऑडियंस टू क्रैक सच अ बिग पैकेज और सच अ बिग कंपनी? Yes. So there are two options basically. One is you can go for a backend developer, or one is you can go for front end, or you can go for a full stack. So if you are going for front end, then you can start with like basic coding and not a lot of TSA is required. Basic TSA is like arrays and all. These things are required. And after completing that, you will run the front end part, that is the HTML, CSS, and JavaScript. So in the front end part, it is all about projects, like to make very good and beautiful project on your own, which you can obviously make after learning properly. So once you have made good projects in the front end, you can definitely apply for the companies. In the internet, there are lots of options of like what kind of projects you can learn. For the backend part, the DSA is the most important thing. So at least 3 to 4 months of very good DSA is required. You have to solve the lead code and gigs per weeks consistently for 3 months. ऐसा नहीं कि आपने आज पांच प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, उसके बाद 2 3 दिन आपने छुआएंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन जाके आप फिर से दो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? एग्जैक्टली। और आपको लीड कोड गिग्स पर वीक सब जगह पे ओवरऑल सारे टॉपिक्स मिला कि जैसे एरेज, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारी एटलीस्ट बेसिक आपको आनी चाहिए। और अब एटलीस्ट 200 to 300 कंबाइनिंग ऑल डिफरेंट टॉपिक्स आप मीडियम लेवल के, जैसे मीडियम लीड कोड और वीक्स के मीडियम लेवल के आप एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एंड आफ्टर दैट आपको एक फ्रेमवर्क सीखना है बैकएंड के लिए, जिससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इन माय केस इट वाज स्प्रिंग बूट आज बहुत चलता है जावा के लिए, तो स्प्रिंग बूट आप सीखो अच्छे से। और सीखने के बाद सिमिलर भी, जैसे मैंने फ्रंट एंड में बताया, यहाँ पे भी आपको खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसको टेस्ट करने हैं। जब आपके प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, आप उसके बाद डेफिनेटली कंपनी इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ओके। और फुल स्टैक के लिए दोनों चीज़ जो मैंने बताई है, वो दोनों चीज़ें भी आपको मतलब फुल स्टैक के लिए आपका फ्रंट एंड पार्ट भी होना चाहिए और बैक एंड पार्ट भी। पार्ट भी होना चाहिए, बैक एंड पार्ट भी होना चाहिए, डीएसए भी अच्छा होना चाहिए। Okay, Saurav, thank you for coming this channel and sharing such a great experience that you have. And guys, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सौरभ सर की भी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल दे दिया है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी डाउट रहता है, आप इनको लिंक्डइन पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सच है अमेजिंग पॉडकास्ट एंड अभी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।